हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। सतर्क एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रति समर्पित माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब हृदय से अभिनंदन करते हैं। मंच पर स्वागत है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एवं भारत के कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा जी का। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हीरक जयंती के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम की वेबकास्टिंग सीबीआई के देश भर के 67 शाखाओं एवं देश के प्रत्येक राज्यों के पुलिस महानिदेशक कार्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं सतर्कता कार्यालयों में प्रसारित की जा रही है। माननीय, अप्रैल 1963 में अपनी स्थापना के उपरांत इन 60 वर्षों में सीबीआई ने एक बहुआयामी, बहुविषयक सेंट्रल पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ब्यूरो अपने कार्य में और अपने अधिकारियों एवं कर्मियों के व्यक्तिगत आचरण में भी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम निदेशक सीबीआई श्री सुबोध कुमार जायसवाल से अनुरोध करते हैं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन हीरक जयंती स्मृति चिन्ह देकर करें। धन्यवाद महोदय। निदेशक सीबीआई श्री सुबोध कुमार जायसवाल से अनुरोध है कि वे कृपया स्वागत संबोधन दें। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable National Security Advisor Shri Ajit Doval ji Kirti Chakra, Honorable MOSPP Dr. Jitendra Singh ji, distinguished cabinet ministers and union ministers of state, respected cabinet secretary Shri Rajiv Gauba ji, honorable judges of the Delhi High Court, distinguished secretaries to the Government of India, distinguished directors generals of police, chiefs of central police organizations, heads of state anti-corruption bureaus, respected former directors of Central Bureau of Investigation, senior colleagues in service, members of media and press, ladies and gentlemen, students from various colleges in India. Namaskar. It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to all of you as we launch the year-long celebration of the Diamond Jubilee functions of the CBI. It is my honor and privilege on behalf of all ranks of CBI to extend a warm welcome to our esteemed Prime Minister Shri Narendra Modi ji, whose singular administrative philosophy of zero tolerance to corruption in governance and society at large has been inspirational. Prime Minister, sir, your gracious presence to inaugurate our Diamond Jubilee celebrations and the Chintan Shivir that follows here today is an honor to the organization. The Bureau has evolved from an agency combating corruption to a multidisciplinary investigative and prosecuting organization of international repute. The Bureau has made a significant contribution in cleaning up of the financial systems in the country by making valuable recommendations which emerged out of its punitive and preventive role during investigations and operations. Systemic changes have taken place in governance procedures across sectors as an outcome of the investigative efforts of this organization. This was possible only due to the hard work, commitment, and belief of officers and men who went before. The edifice of this institution is built on the rock-solid foundation of three values of industry, impartiality, and integrity given to us by our founding director, Shri D.P. Kohli, IP 1931. These values remain the lodestar that guides the organization today. Our predecessors in the Bureau steadfastly ensured that skills, knowledge, and attitudes are passed down the generations. No wonder the Bureau enjoys the confidence of the judiciary
as well as the common man and victims of crime who invariably demand its services to undo wrongs. This Bureau has sustained and continues to endure simply because of its robust systems and procedures and a band of officers and men who ensure that they deliver on the faith reposed in them by the society at large. 21 such officers who have served and are serving in CBI will be conferred with the President's Police Medal for Distinguished Services and the Best Investigating Officer Award by the Honorable Prime Minister for their dedicated services to the nation. Sir, the Bureau investigates and prosecutes its criminal cases. Over the years, the organization has developed mechanisms to introspect periodically and has resiliently incorporated best practices. The future vision of the CBI is to ensure absorption of cutting-edge technology necessary to fast-track investigations and prosecutions without losing focus on the established systems and procedures. Sir, the organization necessarily has to draw on high-quality professional talent, weed out the deadwood ruthlessly, and build a robust and well-trained team of officers to meet future challenges. Towards this end, in our Diamond Jubilee year, we have sought to pursue excellence in all activities, be it investigation, prosecution, capacity building, or administration. Our proposed roadmap for the Diamond Jubilee celebrations spread over the year includes active efforts to reach out to various government departments, organizations, as well as citizens at large in order to increase awareness about punitive and preventive vigilance initiatives. To upgrade our standard operating procedures of investigation, technology, and forensics, the organization aims to proactively engage with eminent institutions of the country. Enhanced capacity building initiatives on anti-corruption and emerging crimes for domestic law enforcement agencies and friendly countries are also in our plans. I once again welcome all and eagerly look forward to an enlightening address by our Honorable Prime Minister. Jai Hind. धन्यवाद महोदय। हीरक जयंती वर्ष पिछली उपलब्धियों का गौरव और आगे की लंबी यात्रा की आशा। आइए देखें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो पर एक लघु फिल्म। प्रशासन में भ्रष्टाचार के उन्मूलन और सत्यनिष्ठा को स्थापित करने के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के संकल्प से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पारित हुआ। सन 1962 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रशासन में भ्रष्टाचार की बढ़ती हुई घटनाओं से निपटने एवं सुझाव देने के लिए कस्तूरी रंगा संथानम कमेटी नियुक्त की। कमेटी की संस्तुतियों पर अमल करते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 को रेजोल्यूशन द्वारा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई की स्थापना की। सीबीआई के प्रथम डायरेक्टर डीपी कोहली ने सीबीआई अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, जनता आपसे कार्यकुशलता और सत्यनिष्ठा दोनों में उच्चतम स्तर की अपेक्षा करती है। उस विश्वास को बनाए रखना है। प्रारंभ से ही सीबीआई ने अपनी आदर्श वाक्य उद्यमिता, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के पथ पर चलते हुए अत्यंत जटिल एवं संवेदनशील मामलों की जांच में सत्य को उजागर कर देश की विभिन्न संस्थाओं और जनता का विश्वास अर्जित किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालयों, केंद्र व राज्य सरकार तथा लोकपाल एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने निरंतर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संगीन आपराधिक मामलों को सौंपकर सीबीआई की जांच प्रणाली पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। भ्रष्टाचार उन्मूलन और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए सीबीआई पर प्रिवेंटिव विजिलेंस एवं प्यूनिटिव विजिलेंस की मुख्य जिम्मेदारियां हैं। देश के आर्थिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई बैंक धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों की गहन जांच कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। सीबीआई ने अनेक आर्थिक अपराधियों को न्यायपूर्वक दंड दिलाकर देश की आर्थिक प्रणाली में विश्वास बढ़ाया है। सीबीआई केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों से जुड़े साइबर क्राइम के मामलों की जांच एवं G7 24/7 के नेटवर्क से अंतर्राष्ट्रीय डेटा संरक्षण के लिए अधिकृत नोडल एजेंसी है।
देश की उत्कृष्ट जांच एजेंसी सीबीआई पर गंभीर मामलों की जांच, अनुसंधान एवं उनके सफल अभियोजन का दायित्व है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत इंटरपोल की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाली सीबीआई आज देश के विभिन्न पुलिस बल के साथ परस्पर समन्वय, प्रशिक्षण एवं रिसर्च के माध्यम से राष्ट्र को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सीबीआई की वास्तविक शक्ति उसके अनुसंधान एवं अभियोजन अधिकारियों की पेशेवर दक्षता, कर्तव्य के प्रति समर्पण एवं ईमानदारी से ही है। गाजियाबाद स्थित सीबीआई एकेडमी में कड़े प्रशिक्षण में तब कर सीबीआई ऑफिसर्स अपने विशिष्ट दायित्वों के लिए तैयार होते हैं। देश की सभी कानून प्रवर्तन संस्थाओं के लिए सीबीआई की क्राइम मैनुअल एवं मानक संचालन प्रक्रियाएं गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। निरंतर परिवर्तित होते आपराधिक परिवेश से निपटने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाकर सीबीआई ने कई अति विशिष्ट जांच प्रभाग एवं इकाइयां बनाई हैं। सीबीआई के कार्यालयों का नेटवर्क श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम एवं गांधीनगर से ईटानगर तक देश के 36 शहरों में स्थित है। सीबीआई के जांच एवं अभियोजन अधिकारियों के बेजोड़ तालमेल, उनके निरंतर प्रशिक्षण व उन्नयन, आधुनिक तकनीकों का तीव्रता से एकीकरण इसे विश्व की एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाता है। आज सीबीआई का कन्विक्शन रेट करीब 75% है, जो वैश्विक मानकों से तुलनीय है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ निकट समन्वय से सीबीआई ने वांछित भगोड़ों की भारत वापसी के लिए ऑपरेशन त्रिशूल, ड्रग संबंधित सूचना आदान प्रदान के लिए ऑपरेशन कर, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन चक्र एवं ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र लॉन्च किए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता के साथ सीबीआई राष्ट्र सेवा में समर्पित है। 60 वर्षों से लोगों के विश्वास का प्रतीक सीबीआई आजादी के अमृत काल में उत्तरोत्तर उत्कृष्टता के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रख रहा है। आज के इस कार्यक्रम में कुल 18 पदाधिकारियों को असाधारण योगदान और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। इस पदक को प्रदान करने की घोषणा इन अधिकारियों के सीबीआई में पदस्थापन के दौरान की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2019, 2020 व 2021 के लिए परिष्कृत अपराध में असाधारण, उत्कृष्ट और पेशेवर जांच करने के लिए 3 सर्वश्रेष्ठ अन्वेषक को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे विजेताओं को अपने कर कमलों से पुरस्कृत कर अनुग्रहित करें। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिक्किम श्री AK सिंह। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरपोल श्री MM ओबराय। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच चेन्नई श्री सैयद बजलुल्लाह।
Additional Director General of Police, Criminal Investigation Department, Assam, Shri A.Y.V. Krishna. Inspector Banking Security and Fraud Cell, Mumbai, Shri C.V. Pujari. Sub Inspector CBI Academy, Ghaziabad, Shri Rajesh Singh. Joint Director CBI Chandigarh Zone, Shri Vineet Vinayak. Joint Director CBI Anti-Corruption Headquarters Zone, Shri Manoj Shashidhar. Superintendent of Police Special Crime, New Delhi, Shri Kaptan Singh Lochab. Additional Superintendent of Police Anti-Corruption, Delhi, Shri Ram Avtar Yadav. Additional Superintendent of Police Anti-Corruption Branch, Chandigarh, Srimati Seema Pahuja. Assistant Sub Inspector Special Unit, New Delhi, Shri Naresh Kumar. Joint Director CBI, Bhopal Zone, Shri Ramesh Gir. Additional Superintendent of Police, Dehradun, Shri Satish Kumar Rathi. Additional Superintendent of Police Anti-Corruption Branch, Guwahati, Shri Anil Kumar Yadav. Additional Superintendent of Police Anti-Corruption Branch, Gandhinagar, Shri Netram Meena. Assistant Sub Inspector Anti-Corruption, Delhi, Shri Bansidhar Bijarnia. Head Constable, CBI Headquarters, New Delhi, Shri Mehboob Hassan.
गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वर्ष 2019 के लिए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच पटना मिस विभा कुमारी। वर्ष 2020 के लिए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्पेशल क्राइम ब्रांच चेन्नई श्री टी.पी. आनंद कृष्णन। वर्ष 2021 के लिए एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्रांच मुंबई श्री प्रमोद कुमार। धन्यवाद माननीय। माननीय, सीबीआई की नागपुर, शिलोंग और पुणे स्थित शाखाएं अस्थायी कार्यालय परिसरों से संचालित हो रही थी। सरकार की स्वीकृति से इन शहरों में भी आधुनिक सुविधाओं से लैस ब्रांच ऑफिसेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। हीरक जयंती के उपलक्ष्य पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वो रिमोट का बटन दबाकर इन 3 नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन करें। धन्यवाद माननीय। यह हम सब के लिए हर्ष एवं गौरव का विषय है कि भारत सरकार ने सीबीआई के हीरक जयंती अवसर के स्मरणोत्सव में स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्का जारी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपने समक्ष रखे रिमोट का बटन दबाकर स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्का जारी कर हमें अनुग्रह करें। धन्यवाद माननीय। एंटी करप्शन व साइबर अपराध विषयों पर जागरूकता बढ़ाने व इससे संबंधित सूचना का प्रसार करने के लिए हीरक जयंती पर सीबीआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आज डेब्यू कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने समक्ष रखे रिमोट का बटन दबाकर सीबीआई का ट्विटर हैंडल लॉन्च करें। धन्यवाद माननीय। प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित बनाने, अन्वेषण के मानकों एवं फ्रॉड की रोकथाम में बेहतर मार्गदर्शन
व इंटरपोल और इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन को सुगम बनाने के उद्देश्य से हीरक जयंती के अवसर पर सीबीआई ने एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल 2023 व विभिन्न सामयिक विषयों पर 3 पुस्तकें बनाई हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वे उनके समक्ष रखे रिमोट का बटन दबाकर इन मैनुअल व पुस्तकों का विमोचन करें। धन्यवाद माननीय। यहाँ उपस्थित सभी की जानकारी के लिए 3 भागों में तैयार यह सीबीआई एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल 2023 वर्ष 2003 में इसके पूर्व संस्करण को व्यापक संशोधित कर बनाया गया है। इसमें तत्पश्चात हुए प्रशासनिक परिवर्तन, वेलफेयर, राहत और वित्त से संबंधित विषयों की जानकारी समाहित की गई है। एन एल्मनेक ऑन बैंक फ्रॉड्स केस स्टडीज एंड लर्निंग्स किताब सीबीआई द्वारा अन्वेषण किए गए प्रकरणों के गहन विश्लेषण के आधार पर बैंक फ्रॉड के कारणों, रोकथाम एवं निवारण पर जांच एजेंसियों एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है। इन परस्यूट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इन सीबीआई केसेस किताब सीबीआई द्वारा अन्वेषण किए गए एवं अभियोजन में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 101 मामलों में ऐतिहासिक निर्णयों का एक संकलन है, जो देश की तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए पथ प्रदर्शक है। ट्रैकिंग क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स ग्लोबली किताब तैयार करने के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसी वर्ष आयोजित डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में दिए गए उद्बोधन में प्राप्त मार्गदर्शन है। इस क्रम में सीबीआई हेडक्वार्टर्स में देश की विभिन्न जांच एजेंसियों के 112 एसपी एवं डीआईजी स्तर के अधिकारियों को बुलाकर इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन के विभिन्न आयामों पर विस्तृत जानकारी दी गई एवं उनसे प्राप्त फीडबैक के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। देश सेवा एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने प्रेरणादायी शब्दों से हमें प्रोत्साहित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल जी, कैबिनेट सेक्रेटरी, डायरेक्टर सीबीआई, अन्य अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आप सभी को सीबीआई के 60 वर्ष पूरे होने हीरक जयंती के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। देश की प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहां सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो,
ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है, तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं, अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। सामान्य जन का ऐसा भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। और इसके लिए पिछले 60 वर्षों में जिन ने योगदान दिया है, इस संगठन में रहे सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी यहां कई साथियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल से भी सम्मानित किया गया है। जिनका सम्मान करने का मुझे अवसर मिला है, जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, उनको, उनके परिवारजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथियों, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अतीत की उपलब्धियों के साथ ही आने वाले समय की, भविष्य की चुनौतियों पर मंथन भी उतना ही आवश्यक है। आपने जो चिंतन शिविर किया है, इसका उद्देश्य भी अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को अपडेट करना और इसमें पुराने अनुभवों से सीख लेते हुए भविष्य के रास्ते निकालने हैं, निर्धारित करने हैं। ये भी ऐसे समय में हो रहा है जब देश ने अमृत काल की यात्रा का आरंभ किया है। कोटि कोटि भारतीयों ने आने वाले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत का निर्माण प्रोफेशनल और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के बिना संभव नहीं है। और इसलिए सीबीआई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साथियों, पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से लेकर साइबर क्राइम तक के मामले सीबीआई देख रही है। लेकिन मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है।
भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड से करप्शन की एक लेगेसी हमें मिली है, लेकिन दुख इस बात का है कि आजादी के बाद के अनेकों दशकों तक इस लेगेसी को हटाने के बजाय किसी न किसी रूप में कुछ लोग उसको सशक्त करते गए। साथियों, आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। और इसका असर क्या हुआ? देश का व्यवस्था पर भरोसा टूट रहा था। पूरे देश में करप्शन के खिलाफ आक्रोश लगातार बढ़ रहा था। इससे पूरा तंत्र छिन्न भिन्न होने लगा। लोग फैसला लेने से बचने लगे। पॉलिसी पैरालिसिस का माहौल बन गया। इसने देश का विकास ठप कर दिया। देश में आने से निवेशक डरने लगे। करप्शन के उस कालखंड ने भारत का बहुत ज्यादा नुकसान किया। साथियों, साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कारणों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं, सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया
आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। आप भी जानते हैं, अब केंद्र सरकार के हर विभाग में खरीदारी के लिए जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की स्थापना की गई है। आज हर विभाग ट्रांसपेरेंसी के साथ इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक खरीदारी कर रहा है। साथियों, आज हम इंटरनेट बैंकिंग की बात करते हैं, यूपीआई से रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, लेकिन हमने 2014 से पहले का फोन बैंकिंग वाला दौर भी देखा है। ये वो दौर था जब दिल्ली में प्रभावशाली राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के फोन पर हजारों करोड़ रुपए के बैंक लोन मिला करते थे। इसने हमारी अर्थव्यवस्था के आधार, हमारे बैंकिंग सिस्टम को बर्बाद कर दिया था। बीते वर्षों में हम बहुत मेहनत करके अपनी बैंकिंग सेक्टर को मुश्किलों से बाहर निकाल करके लाए हैं। फोन बैंकिंग के उस दौर में कुछ लोगों ने 22,000 करोड़ रुपए देश के बैंकों के लूट लिए और विदेश भाग गए। हमने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कानून बनाया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। साथियों, भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था जो दशकों से चला आ रहा था। ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट। पहले की सरकारों में जो मदद गरीब लाभार्थियों के लिए भेजी जाती थी वो बीच में ही लूट ली जाती थी। राशन हो, घर हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, ऐसी अनेक सरकारी स्कीम्स में असली लाभार्थी खुद को ठगा हुआ महसूस करते थे। और एक प्रधानमंत्री ने तो कहा था, 1 रुपया जाता है 15 पैसा पहुंचता है। 85 पैसों की चोरी होती थी। पिछले दिनों मैं सोच रहा था, हमने डीबीटी के द्वारा करीब 27 लाख करोड़ रुपए नीचे लोगों में पहुंचाया है। अगर उस हिसाब से देखता तो 27 लाख करोड़ में से करीब करीब 16 लाख करोड़ कहीं चले गए होते। आज जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी से हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल रहा है। इस व्यवस्था से 8 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थी सिस्टम से बाहर हुए हैं। जो बेटी पैदा नहीं हुई वो विधवा हो जाती थी और विधवा पेंशन चलता था। डीबीटी से देश के करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, एक समय था जब सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू पास कराने के लिए भी जम करके भ्रष्टाचार होता था। हमने केंद्रीय भर्तियों की ग्रुप सी, ग्रुप डी भर्तियों से इंटरव्यू खत्म कर दिया। एक समय में यूरिया के भी घोटाले होते थे। हमने यूरिया में नीम कोटिंग कर इस पर भी लगाम लगा दी। डिफेंस डील्स में भी घोटाले आम थे। बीते 9 वर्षों में डिफेंस डील्स पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया है। अब तो हम भारत में ही अपनी जरूरत का रक्षा सामान बनाने पर बल दे रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को लेकर
ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता हूं। लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी दो तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा, जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विस्तृत सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। साथियों, बेहतर परिणामों के लिए अलग अलग एजेंसियों के बीच के साइलोज को भी खत्म करना बहुत आवश्यक है। ज्वाइंट और मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन आपसी विश्वास के माहौल में ही संभव होगा। अब देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, उससे बाहर भी पैसों का, लोगों का, गुड्स एंड सर्विसेज का बड़े पैमाने पर मूवमेंट हो रहा है। जैसे जैसे भारत की आर्थिक शक्ति बढ़ रही है तो अड़चने पैदा करने वाले भी बढ़ रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने पर, हमारी एकता और भाईचारे पर, हमारे आर्थिक हितों पर, हमारे संस्थानों पर भी नित्य प्रतिदिन प्रहार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसमें जाहिर तौर पर करप्शन का पैसा लगता है। इसलिए हमें क्राइम और करप्शन के
मल्टीनेशनल नेचर को भी समझना होगा, स्टडी करना होगा, उठ के रूट कॉज तक पहुंचना होगा। आज हम अक्सर देखते हैं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण क्राइम ग्लोबल हो रहे हैं, लेकिन यही टेक्नोलॉजी, यही इनोवेशन समाधान भी दे सकते हैं। हमें इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक साइंस के उपयोग का और ज्यादा विस्तार करना होगा। साथियों, साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए हमें इनोवेटिव तरीके खोजने चाहिए। हम टेक एनेबल एंटरप्रेन्योर्स और यंगस्टर्स को अपने साथ जोड़ सकते हैं। आपके संगठन में ही कई टेक्नो सेवी युवा होंगे जिनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। साथियों, मुझे बताया गया है कि सीबीआई ने 75 ऐसी प्रथाओं को कंपाइल किया है जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। हमें एक समयबद्ध तरीके से इस पर काम करना चाहिए। बीते वर्षों में सीबीआई ने खुद को इवॉल्व किया है। ये प्रक्रिया बिना रुके, बिना थके ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है चिंतन शिविर एक नए आत्मविश्वास को जन्म देगी। ये चिंतन शिविर नए आयामों तक पहुंचने के रास्ते बनाएगी। ये चिंतन शिविर गंभीर से गंभीर, कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीके में आधुनिकता ले आएगी और हम ज्यादा प्रभावी होंगे, ज्यादा परिणामकारी होंगे और सामान्य नागरिक न बुरा करना चाहता है, न बुरा उसको पसंद है। हम उसके भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं जिसके दिल में सच्चाई जिंदा है, और वो संख्या कोटि कोटि जनों की है, कोटि कोटि जनों की है। इतना बड़ा सामर्थ्य हमारे साथ खड़ा है, तो हमारे विश्वास में कहीं कमी की गुंजाइश नहीं है। साथियों, इस हीरक महोत्सव के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने लिए 15 साल में क्या करेंगे और अपने माध्यम से 2047 तक क्या अचीव करेंगे, ये 2 लक्ष्य तय कर करके आगे बढ़ना चाहिए। 15 साल इसलिए कि जब आप 75 के होंगे तब आप कितने सामर्थ्यवान, समर्पित, संकल्पवान होंगे, और जब देश 2047 में शताब्दी मनाता होगा तब इस देश की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप आप किस ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, वो दिन देश देखना चाहता है। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। और आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को, जो कि सीबीआई के हीरक जयंती कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। काफी अहम बातें प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक उपलब्धि से कम नहीं है। अगर हम सीबीआई